Shifting focus now, after 24 days of choking, residents of Delhi and the adjoining National Capital Region breathed easy on 30th November morning as overall air quality improved to the poor category with an AQI reading of 270 according to the Central Pollution Control Board. The AQI is lower than 29's AQI of 305, marking a major improvement in air quality. After 24 days, the overall AQI of the capital city in the previous week was 369 on Friday, 377 on Thursday, 327 on Wednesday, 352 on Tuesday and 382 on Monday. On the 30th, out of 38 monitoring stations across Delhi, only 5 recorded AQI in the very poor range. AQI monitoring stations in hotspot areas like Dilshad Garden, Jahangirpuri, Nehru Nagar, RK Puram and Shadipur recorded very poor range. Notably, Mandir Marg recorded the best air quality index of 157, which is in the moderate range as of 6 am. My colleague Malvika Pandey is now on the broadcast with me, who will be sharing more details with us. Stated, after 24 days, and in fact we saw a 15-day streak where the air quality was in the very poor category, and before that it was nearing severe and hazardous levels. But today, after 24 days, we're now seeing that the AQI has slipped back into the poor category, which is a slight improvement for the Delhi NCR region. And we have the live tracker over here which shows us the AQI in many parts of this region. And you can see while some places do continue to report hazardous levels, especially in the Haryana, state of Haryana, Delhi has seen some improvement, and you can see over here most of the areas are in the 200 category, which is a huge step up from what the city had been witnessing in the past. There are in fact some places which are as low as 196, 187, and this is a huge improvement. Of course, however, one must keep in mind that this is still a very toxic environment for the citizens, for the residents, because this sort of an air quality is still very unhealthy. However, there is some improvement. Even after GRAP 3 was removed a few days back, there has been a slight improvement in the air quality index in the National Capital Region. Yes, Mehta, back to you. Thank you, Malvika, for sharing your insight, all those details with us. I am now joined by our reporters Bhavna Sisodia from Vasant Kunj, Ali Khan from Noida and Arzu Seth from India Gate, who are going to be bringing us more details about the AQI across the National Capital Region. Let me go across to my colleague Ali Khan, who is currently in Noida. Ali, you're in Noida right now. What exactly is the AQI reading from where you are reporting currently? तो ये अच्छा नंबर मानता हूं मैं, क्योंकि रोजाना जो पूरे नवंबर के महीने में AQI करीबन 400 के पार ही रहा है, रेड जोन में रहा है। पर आज नोएडा वासियों के लिए, कुछ एनसीआर वासियों के लिए कुछ राहत भरी सांसें नजर आ रही हैं, क्योंकि आज AQI के 300 के नीचे करीबन 270 के आसपास अभी बना हुआ है। क्योंकि कल रात शाम से ही तेज हवाएं चल रही हैं, जो अमूमन जो 2.5 से 5 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती थी, वो आज कल शाम से ही करीबन 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है, तो जिसकी वजह से AQI में काफी सुधार आया है। वहीं ग्रैप 3 के मेजर्स हटाने के बाद और स्थिति खराब हुई थी, पर हवा के चलने से कुछ स्थिति तो सही सुधार हुई है। मौसम की वजह से कुछ स्थिति में सुधार हुआ है, पर कहीं ना कहीं जो ग्रैप 2 के मेजर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं काफी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसी हवा का दबाव कम होता है और AQI में पॉल्यूशन काफी बढ़ोतरी नजर आती है। वही लगातार एकदम AQI स्पाइक होता है। आज हवा तेज है तो AQI कम है, वरना एक हवा की स्पीड स्लो होते ही AQI काफी स्पाइक करता है। मैं लोगों को इससे खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार 1 महीने से लोग इस खराब हवा में सांस ले रहे हैं, जो AQI 400 के पार बना हुआ है। तो इसको लेके बेहद लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी आम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लॉन्ग टर्म नुकसान भी है, इससे लंग्स कैंसर, कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याएं भी हो सकती है। वहीं तमाम जो अथॉरिटीज हैं और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो इसको लेकर AQI को उपायों की बात करता है कि तमाम ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिनसे AQI में सुधार हो सके। वाटर स्प्लैंकिंग की बात करें, मैकेनिकल स्वीपिंग की बात करें, चाहे टैंकर्स के माध्यम से पेड़ पौधों की धुलाई, या 14 से 15 टीमें अलग बनाई गई हैं नोएडा में, जो इसका रखरखाव कर रही हैं, जो नजर बना के रख रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ग्रैप के कोई नियमों के
अनदेखी करी जा रही हो, उनकी अवहेलना की जा रही हो और जागरूकता भी फैला रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये तमाम उपाय नाकाफी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई दिनों में जितने भी ग्राफ 3 के भी नियम लागू रहे, लोगों को अवहेलना करते साफ तौर पे नजर आए, कूड़ा खुले में कूड़ा जलता नजर आया, तमाम ऐसी चीजें होती नजर आई जो ग्रैप 3 में नहीं होनी चाहिए थी। अब वहीं ग्रैप 2 की बात करें तो अब ग्रैप 2 के नियम लागू हैं, वहीं कोयले की भट्टी, तंदूर, इन सब तमाम चीजों पर रोक है, पर वहीं अभी भी नोएडा में कई ऐसे ढाबे होटल संचालक हैं जो लगातार ऐसे भट्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुले में कूड़ा अभी भी जलाया जा रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक्यूआई को सुधार करने के लिए जरूरी हैं, जिन पे अभी भी लगाम नहीं कसी जा रही है। तो बेहद गंभीर समस्याएं, वहीं इन सब चीजों के जो लॉन्ग टर्म नुकसान हैं वो बेहद जरूरी हैं। उन्हें समझना जरूरी है कि अगर आप घरों से बाहर निकले हैं तो मास्क का उपयोग करें, N95 या उससे बेहतर ही कोई मास्क लगाएं। आम मास्क भी जो PM 2.5 है उसमें नाकाफी है। तो ऐसी तमाम समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है, जिसको लेके अभी भी अब आज की बात करें तो एक्यूआई कुछ बेहतर स्थिति है फिलहाल। Let me also go across to my colleague Arzu Seth. Arzu, you are at India Gate. What is the AQI reading right now at that area? Recorded in the very poor category today. The Delhi Heights woke up to some relief as the AQI has now reached to a poor category. Also, firstly, we would like to show you the data here to make the viewers understand what it looks like. As you can see, Delhi's overall AQI is in the poor category, which is 268. And also, if we talk about the other places in the national capital, you can see there are red zone areas, but it has decreased to at some level. And also you can see the significant difference in the AQI at the Mandir Marg. The AQI at the Mandir Marg is 157, which is like much better than any place in the national capital. Also, if we talk about the other places, in fact, the Anand Vihar is also showing a better AQI today, as the AQI is in the a very poor category. It's 282, but it's still much better than before. Other places also, as I mentioned, the improvement can clearly be seen, and the overall AQI in the national capital today stand at 268, which is in the poor category. So definitely there are some relief in the national capital. Also would like to show you the visuals around. Right now we are at the India Gate, and as you can see, still there is a thick layer of smog that is prevailing in the environment. As you can see, the layer around the trees, and it will be clear how the smog is engulfing the entire area. Would like to also show you the other side of the India Gate. As you can see, this is the route which goes to the central Delhi, and here also you can clearly see that up कटा है ना. Let me go across to my colleague Bhavna Sisodia right now, who is in Vasant Kunj. Bhavna, you are at Vasant Kunj. What is the AQI reading like that? What is the AQI reading there right now? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर वसंत कुंज के AQI की बात की जाए तो AQI जो है लगातार खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। ये कहा जा सकता है कि पहले से ज़्यादा जिस तरीके से दिल्ली में AQI लेवल बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ था, कहीं ना कहीं उससे राहत ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन आबो हवा जो है वो फिलहाल अभी भी खराब होती नज़र आ रही है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की आबो हवा की बात की जाए तो दिल्ली की आबो हवा इतनी ज़्यादा खराब होती जा रही है कि लगभग 80% लोगों को हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आंखों में जलन, गले में खराश की समस्या जो है लोगों को कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है, जिस वजह से कई गंभीर बीमारियों का शिकार भी दिल्ली वाले अब होते जा रहे हैं। वहीं अगर लोगों की बात की जाए तो लोग भी अब साफ तौर पर ये विचार बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा बिगड़ती जा रही है और सेहत के ऊपर असर डाल रही है, तो लोग अब दिल्ली छोड़ने को मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जेब देखते हुए ही लोग ये कदम उठा सकते हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बिगड़ती आबो हवा के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर असर पड़ रहा है और अभी
अभिभावक भी जो है बेहद ही ज़्यादा चिंतित होते नजर आ रहे हैं। अभिभावकों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से सुबह सुबह बच्चों को स्कूल के लिए जाना होता है, कहीं ना कहीं सुबह सुबह की बिगड़ती आबोहवा बच्चों की सेहत के ऊपर असर डाल रही है और बच्चे भी गंभीर बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, जिसको लेकर अभिभावक बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए हाइब्रिड मोड पर स्कूल क्लासेस जैसे पिछले कुछ दिनों में देखी गई थी, तो कहीं ना कहीं उससे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार द्वारा विंटर एक्शन प्लान की घोषणा तो की गई, लेकिन लागू होता हुआ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार वो दिखाए कि किस तरीके से एक ग्रेइश लेयर, एक स्मोक की चादर जो है दिल्ली के आसमान में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो है लोगों को परेशानी हो रही है। यही वो स्मोक की लेयर है जिसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक जिस तरीके से दिन पर दिन आबो हवा जो खराब होती जा रही है और ग्रैब 3 के नियमों को भी आनन फानन में CAQM ने हटा दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह लगता है कि एक बार फिर से दिल्ली में उसी तरीके की स्थिति देखी जा सकती है। चूंकि देखा जाए तो जब ग्रैब 3 की पाबंदियां दिल्ली में लगाई गई थी, तो कहीं ना कहीं बढ़ते प्रदूषण के स्तर से दिल्ली वालों को थोड़ी बहुत राहत जरूर देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है 10 की 10 होती नजर आ रही है और AQI लेवल जो है फिर से खराब श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से ग्रैब 3 के नियमों को हटा दिया गया है, सरकार द्वारा फैसला लिया गया था कि 500 ऐसी इमारतें जहां पर वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स जो एंटी स्मोक गन जो है वो लगाई जाएंगी, वहीं दिल्ली की सड़कों पर जो है वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स काम करेंगी। 29 तारीख तक जो है एंटी स्मोक गन दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों पर लगाई जानी थी, तमाम जगहों पर देखने को तो मिली, लेकिन कितनी कार्यरत है इसकी तस्वीरें अभी सामने नहीं आ पाई हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि एंटी स्मोक गन लगाने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन दिल्ली की सड़कों पर चलाने के बाद ग्रैब 2 के नियम लगने के बावजूद भी और तमाम टीमें जो इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके ऊपर नजर रखती नजर आ रही है, तो क्या इन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा से दिल्ली वालों को राहत मिलती है या इसी तरीके से स्थिति जिसकी तस बनी रहती है। चूंकि अगर बात की जाए तो दिल्ली में सर्दियां भी दस्तक दे चुकी है। जहां एक तरफ धुंध की चादर दिल्ली के आसमानों में देखने को मिलती है, वहीं हवा की गति भी तेज हो गई है। तो उम्मीद लगाई जा रही है जिस तरीके से सर्दियों के दस्तक देते ही हवा की गति तेज हुई है, तो इसकी वजह से दिल्ली में ठहरा हुआ प्रदूषण शायद कम हो जाए, जो हवा की गति के साथ प्रदूषण बाहर निकल जाए। तो इस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अब देखना यही होगा कि स्थिति कब सामान्य होती है और कब बिगड़ती आबो हवा से दिल्ली वालों को राहत मिलती है। Let me go across to my colleague Ali Khan. Ali, now the AQI has witnessed a slight improvement today. आगे का फोरकास्ट क्या है? क्या AQI और बेटर होते हुए दिख रहा है या फिर ये बस एक टेम्पररी रिलीफ है लोगों के लिए? ये माना जा रहा है ये बिंदा की ये भी टेम्परेरी रिलीफ है, क्योंकि हवा का दबाव बढ़ा है, हवा तेज हुई है, इस वजह से अभी आज आसमान में भी धुंध कम है और AQI भी काफी नीचे आया है। पर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अभी AQI की स्थिति और खराब होगी। ये गंभीर स्थिति में पहुंचने की बताया जा रहा है कि इसका AQI का स्तर करीबन 500 के आसपास जाने की अनुमान लगाया जा रहा था। तो तमाम ऐसी तैयारियां लगातार करने की बात तो कही जा रही है, पर धरातल पे नहीं उतरती नजर आ रही है। तो बेहद गंभीर स्थिति में AQI पूरे महीने से बना हुआ था, पूरा नवंबर का महीना रेड जोन में था, जिससे लेके लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना। वहीं आपको बता दूं कि जिला अस्पताल की OPD में मरीजों की संख्या बढ़ी है, डे नाइट OPD चलाई जा रही है और मरीजों की संख्या में एकदम स्पाइक आया है। तो करीबन 30-40% मरीज स्पेशली ENT और आई केयर के पास ज्यादा लाइनों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं से जूझते हुए लोग लगातार अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। मेरा Let me go across to my colleague Arzu Seth now. Arzu, how are elderly people, young children, perhaps coping with this poor air quality in Delhi? I have with me some of these students who, they are in this school and they have to go to school on a regular basis amid this, hazardous air pollution in the national capital. क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, आप लोग स्कूल में क्योंकि पढ़ते हैं, डेली स्कूल जाना रहता है, क्लास 5th तक तो हाइब्रिड मोड में कर दिया गया था, लेकिन आप लोगों के लिए स्कूल में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। कितनी प्रॉब्लम होती है डेली स्कूल जाने में? मैम प्रॉब्लम्स तो काफ़ी है, जैसे हम सुबह ट्रैफिक वगैरह इतना ज़्यादा मिलता है, फॉग इतना हो जाता है कि स्कूल वगैरह पहुंचने में तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा है, मास्क वगैरह का यूज़ ज़्यादा करना पड़ रहा है इसके कारण। तो आई थिंक इसको थोड़ा गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा अपना ट्रैफिक वगैरह भी कम हो, क्योंकि फॉग इतना हो जाता है स्मोक के साथ साथ, तो फॉग कम और ये स्मोक ज़्यादा लगता है, ब्रीथ करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
तो इसलिए थोड़ा आई थिंक सो उसकी गवर्नमेंट को थोड़ा सुधार करना चाहिए इसके लिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि आंखों में दिक्कत होती है, तो आप लोग भी क्योंकि बोर्ड पर देखना है इस क्लास में जाके, तो आंखों में भी प्रॉब्लम होती है? यस मैम, थोड़ा तो वो तो मतलब जैसे जलन होने लग जाती है आंखों में, थोड़ा रेडिश होने लग जाते हैं जिस ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा तो प्रॉब्लम है मैम आंखों में, पढ़ाई करने में फिर दिक्कत हो जाती है इसकी वजह से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चैतन्य है। आप कौन से क्लास में? मैं 9th में हूँ। 9th में है, तो आपको भी डेली स्कूल जाना रहता होगा, तो किस तरीके की क्या कुछ प्रॉब्लम जो है हो रही है? हम देख रहे हैं फिलहाल आज थोड़े हालात सुधरे हुए हैं, लेकिन लगातार पिछले कई दिनों से वेरी पुअर कैटेगरी में था। आने वाले दिनों में भी हालात कुछ इसी तरीके के बने रहेंगे, और ये पहले साल नहीं है, हर साल ऐसे देखने को मिलता है। तो आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है? आप तो इतने यंग है, और फिर इस हवा में सांस लेना। मेरे को यहाँ तक कि खांसी तक होती है हल्की हल्की, जब सुबह सुबह मैं बस से जाता हूँ, और बहुत ट्रैफिक भी रहता है यहाँ पे। तो आप लोगों को लग रहा है कि एफर्ट्स करे जा रहे हैं, या फिर आप लोगों के लिए भी कुछ चेंजेस करने चाहिए? क्लासेस में क्या एयर प्यूरिफायर वगैरह कुछ लगवाए गए हैं, कुछ इनिशिएटिव लिया गया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल जैसे अभी चल रहा है। All right, with that, we're really short on time, Arzu. I'm so sorry to interrupt you. With that, I would like to thank all my colleagues, Bhavna Sisodia, Ali Khan and Arzu Seth.